time complexity of that will be n square. Suppose you're having 3 nested for loop, at that time complexity will be n cube. If you're having 4 nested for loop, at that time it will be n4. Okay, n raised to 4, like on. And if you're working on any one of the algorithm that involves finding the mid element, or that involves dividing the list into 2 halves, okay, at that time your time complexity will be in the power of logarithmic. Okay, it will be logarithmic of n. Always remember, whenever you are dividing your list into 2 halves, suppose you are having 100 numbers and you are dividing your numbers into 2 halves, like 50 and 50, and then you are again dividing your list into the halves and halves and halves. Okay, this particular time complexity is always in the power of logarithmic n, right? So from this particular lecture, I'm starting with the sorting. Why I have given you introduction about the time complexity, it is just to understand the sorting. Okay, sorting के लिए ही मैंने वो time complexity वाला part लिया था. Here you will get a clear cut idea about that for nested for loop, है ना, and how that time complexity is n square. So okay, so I'm starting with the first sort. There are some of the sorts that we will see in this particular chapter. Okay, the starting with a very simple sorting, and that sorting is called as a bubble sort. Okay, that sorting is a bubble sort. So what is a bubble sort actually? In a bubble sort, you will be comparing two adjacent elements. What do you mean by the two adjacent elements? Adjacent elements are nothing but 0 and the 1. Okay, the position 0th index element with the one first index element, first with the second, second with the third, third with the fourth, and so on. So you are going to compare two adjacent element in bubble sort. Always remember this line: in a bubble sort, you are going to compare two adjacent elements. Okay, and if the first element is larger than the second one, then the positions of the elements are interchanged, otherwise there is no change. Remember, अगर मैंने पहले पोजीशन पे मेरे पास एलिमेंट है और मेरे पास दूसरे पोजीशन पे कोई एलिमेंट है, और पहले पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है उसका दैट एलिमेंट, राइट, इट्स ग्रेटर देन द सेकंड एलिमेंट. ओके, तो क्या होगा, इन दोनों की पोजीशन चेंज होगी, अदरवाइज देयर विल बी नो चेंज. Then the next element is compared with its adjacent element, and the same process will repeat it until and unless you have done with each and every element in single pass. जब तक एक पास में आप लोग सारे के सारे एलिमेंट्स कवर नहीं करते हो, तब तक ये प्रोसीजर कंटिन्यू होने वाली है. So how bubble sort works? So bubble sort works, it will compare two adjacent elements. And what do you mean by the two adjacent elements? By with this line, you mean that you will be comparing 0th index element with the first index, first with the second, second with the third, third with the fourth, and so on. और अगर फर्स्ट पोजीशन पे जो भी एलिमेंट होगा, लाइक इफ यू आर कंपेयरिंग विद द जीरो एलिमेंट एंड द फर्स्ट एलिमेंट, इफ जीरो एलिमेंट इज ग्रेटर देन द फर्स्ट एलिमेंट, तो क्या करना है, तो आप लोग उसकी पोजीशन इंटरचेंज करोगे, अदरवाइज देयर इज नो चेंज. बिफोर गोइंग विद द एल्गोरिथम, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द problem, right? It will be easier for you to understand. Just see here. What is the question given? See, these questions are asked for many times of 5 marks. Like sort the given numbers using a bubble sort. And I think this is a searching and sorting. This is just a simplest part of data structures syllabus, right? So starting with this, we are having the numbers 41, 32, 22, 73, and 43. What you will do? First of all, you have to write this element, okay, in a vertical fashion. ये सारे के सारे elements आप लोग vertical fashion में लिख लोगे. And why I have written a pass one? तो pass one में क्या होगा, and pass कब तक चलते हैं, okay, pass कब तक चलने वाले हैं. तो always remember, मेरे पास जितने भी elements है ना, suppose I'm having 5 elements, so I will get my answer in 4 passes. मेरा आंसर कहाँ पे मिलेगा मुझे, 4th पास में. अगर मेरे पास 10 एलिमेंट्स है, तो मुझे मेरा आंसर कहाँ पे मिलेगा, 9th पास पे. सो पास मतलब क्या है, स्टेप्स है. तो कितने स्टेप्स में आपको आंसर आने वाला है, तो n-1. एंड व्हाट इज n? n is the size of the least. Whatever the least that is given to you, you just need to deduct one number from that, and that is the exact number of passes in which you will get your answer. Okay, अभी यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे 5 एलिमेंट है, तो मेरा आंसर कितने पासेस में आएगा, तो मेरा आंसर आएगा मुझे 4 पास में. ओके, 4th नंबर के पास में मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा. एंड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन दिस पास? ये पास में क्या होता है? तो सबसे पहला जो पास होता है ना, उस पास में जो हाईएस्ट नंबर होगा, ओके, जो सबसे बड़ा नंबर होगा, दैट विल टेक द लास्ट पोजीशन. जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है, वो एलिमेंट उसकी लास्ट पोजीशन ले लेता है. सो जस्ट सी व्हिच एलिमेंट इज द लार्जेस्ट वन हियर. इट इज a 73.
तो 73 कहाँ पे जाएगा, तो 73 बॉटम में जाएगा एंड दिस इज हाउ यू विल गेट योर सॉर्टेड लिस्ट। सो पहला एलिमेंट मुझे लार्जेस्ट एलिमेंट मिल गया यहाँ पे। उसके बाद में सेकंड पास में क्या होगा, तो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट विल टेक इट्स ऑन प्लेस, वो उसकी प्लेस लेगा। और थर्ड पास में फिर उसके उसके बाद में जो भी बड़ा होगा वो लेगा, उसके बाद में जो बड़ा होगा वो लेगा एंड इन द फोर्थ पास वी विल बी लेफ्ट विथ नो एलिमेंट टू कंपेयर। तो चौथे पास के बाद में हमारे पास कोई एलिमेंट ही नहीं होगा कि जिसको हम एडजेसेंट एलिमेंट के साथ चेक करेंगे। सो वहां पे हमारा आंसर आ जाएगा। सो व्हाट हैपेंस इन पास एक्चुअली, in the passes the largest element will take their own places, okay, according जो भी उनके places होते हैं वो accordingly they will take their places, right? और एक बात बोली थी मैंने, in a bubble sort you have to check for the two consecutive elements, है ना? In a bubble sort you have to check for the two consecutive elements. तो two consecutive elements का मतलब क्या होता है? I will just write here the index number. Let me write the index number here as well. So this is the 0th index, right? This is the first, this is second, this is third and the fourth. तो कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग क्या होता है? तो पहले कौन सा चेक करूंगी मैं? यू हैव टू स्टार्ट विद द 0th इंडेक्स, राइट? सो आई विल चेक 0 1, देन आई विल चेक 1 2, देन आई विल चेक 2 3 एंड देन आई विल चेक 3 4. Okay, so I will be starting with the first element. So I will check 41 with a 32. Okay, I will check 41 with a 32. और क्या बोला था, अगर फर्स्ट एलिमेंट बड़ा होता है छोटे से तो आप लोगों को क्या करना है, तो आप लोगों को उसकी पोजीशन चेंज करनी है. So here I will change the position. Then I will be having 32 at the 0th position and 41 after 32. है ना, मैंने स्वैप कर दिया. क्यों स्वैप किया? Because 41 बड़ा था. So 32 41 और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, स्वैप लिख दिया है. तो ये एक बार लिख देने का, इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कौन सा एलिमेंट स्वैप हो रहा है और कौन सा एलिमेंट स्वैप नहीं हो रहा है. ओके, so we have done with the 0th and 1. Next I will compare 1 with the first element with the second element, है ना. फर्स्ट एलिमेंट में चेक करने वाली हूँ नेक्स्ट में फर्स्ट सेकंड एलिमेंट के साथ. So here I am having 41 and next I am having 22. So you can see 41 is greater than 22. तो इसका मतलब क्या है, I need to swap. तो swap करके क्या करूंगी, 32 22 41 73 43, बाकी की सीक्वेंस एज इट इज आप लोगों को लिखनी है. और यहाँ पे अगर स्वैप हो गया तो आई विल जस्ट राइट हियर स्वैप, राइट. नेक्स्ट कौन सा चेक होगा, वी हैव डन विद 0 1, वी हैव डन विद 1 2, नाउ वी आर रिमेनिंग विद 2 3, है ना. 2 3 मुझे चेक करना है और 2 3 के अंदर यू कैन सी 41 इज लेस देन 73, है ना. 41 इज लेस देन 73. तो यहाँ पे कोई इंटरचेंज होने वाला है क्या? नहीं होगा. सो आई विल जस्ट राइट द 41 एज इट इज और वहां पे मैं क्या लिख दूंगी, तो यहाँ पे आई विल राइट अ नो स्वैपिंग, राइट. नेक्स्ट पास में क्या होगा, तो नेक्स्ट पास में हम लोगों के पास दो एलिमेंट बचे हैं. दैट एलिमेंट इज 73 एंड 43. 73 एंड 43 एंड 73 इज ग्रेटर देन 43. तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे. सो हियर आई विल बी राइटिंग अ 43. यहाँ पे जगह नहीं थी, यहाँ पे मैंने स्वैप नहीं लिखा है, यू हैव टू राइट हियर. सो स्वैप. और नीचे क्या आएगा, तो नीचे आएगा आपका सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट. सो पास 1 में क्या हो रहा है, तो पास 1 में मुझे जो मेरा सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट था वो उसकी पोजीशन क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा. ओके, ये समझ में आ रहा है. सबसे पहले क्या करना है, जो भी एलिमेंट्स आप लोगों को दिए गए हैं वो एलिमेंट आप लोगों को हॉरिजॉन्टली वर्टिकली लिख लेने हैं. और उसके बाद में बबल सॉर्ट कैसे काम करता है, तो बबल सॉर्ट विल कंपेयर टू कॉन्जिगेटिव एलिमेंट्स. एक के बाजू में दूसरा जो एलिमेंट होता है, टू एडजेसेंट एलिमेंट ये चेक होते हैं. एडजेसेंट का मीनिंग क्या होता है, 0th इंडेक्स विद द फर्स्ट इंडेक्स, फर्स्ट विद द सेकंड, सेकंड विद द थर्ड, थर्ड विद द फोर्थ, फोर्थ विद द फिफ्थ. ओके, लाइक दैट. सो मैंने क्या किया, पास नंबर 1 में, पास 1 क्या है, दिस इज जस्ट अ स्टेप. ओके, पास 1 इट इज जस्ट अ स्टेप. तो स्टेप 1 में क्या कर रही हूँ, तो स्टेप 1 में सबसे पहले आई विल बी कंपेयरिंग 41 विद द 32. ओके, और अगर 41 ग्रेटर देन है विद द फर्स्ट इंडेक्स नंबर, तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दूंगी. एंड वी कैन क्लियरली सी 41 इज ग्रेटर देन 32. तो आई विल एक्सचेंज द वैल्यू ऑफ 32 एंड 41. सो हियर आई विल बी हैविंग अ 32, देन आई एम हैविंग 41. और अगर वो नंबर स्वैप हो रहा है तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना पड़ेगा स्वैप. ओके, नेक्स्ट क्या जा रहा है, तो नेक्स्ट आप लोगों को चेक करना पड़ेगा फर्स्ट विद द सेकंड. So first with the second, again 41 is greater than 22. तो यहाँ पे भी वैल्यूज क्या होगी, स्वैप होगी. और यहाँ पे मैंने लिख लिया है स्वैप. नेक्स्ट क्या चेक होगा, सेकंड विद द थर्ड इंडेक्स, है ना, 41 विद द 73 एंड 41 इज लेस देन 73. तो यहाँ पे स्वैप करने की जरूरत है क्या, नहीं. सो यहाँ पे सिर्फ मैं लिख लूंगी नो स्वैपिंग. और नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा चेक होना है, तो नेक्स्ट एलिमेंट चेक होगा 73 विद द 43, 73 विद द 43. एंड यू कैन क्लियरली सी 73 इज ग्रेटर देन, है ना, 73 इज ग्रेटर देन 43. तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज होगा, स्वैप होगा. यहाँ पे मैं स्वैप लिख दूंगी और नीचे 73 आ जाएगा. एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ माय पास नंबर 1. तो पास 1 में मुझे क्या मिल रहा है, तो पास 1 में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एलिमेंट था, जो सबसे बड़ा एलिमेंट था वो क्या कर लेगा, वो बॉटम में उसकी जगह ले लेगा. नाउ व्हाट हैपेंस इन पास 2,
तो पास टू में क्या होता है, तो पास टू में स्टार्ट कहाँ से करना है, ऑलवेज रिमेंबर पास टू ऑलवेज विल स्टार्ट विद द एंड ऑफ पास वन। पास वन का जो एंड होगा वहीं से आप लोगों का पास टू स्टार्ट होगा। सो मेरा पास वन का एंडिंग क्या है, दिस वन। सो रिमेंबर आप लोग, मेरा पास टू कहाँ से स्टार्ट होगा, पास टू यहीं से स्टार्ट होगा। और 73 ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो आई एम नॉट गोइंग टू वरी अबाउट 73। तो मैं यहाँ पे लास्ट में 43 73 को मैं स्वैप करने की कोशिश नहीं करने वाली हूँ। व्हाई, बिकॉज 73 इज ऑलरेडी, वो जो है 73 उसने उसकी जगह ऑलरेडी ले ली है। सो देयर इज नो नीड टू चेक 43 विद 73। okay, let me start with the next part. That is a pass number 2. So what happens in a pass 2? So I have started with the last part, है ना, I have started with the pass number 1 की ending. So that is 32, 22, 41, 43, 73. अगेन क्या करना है, तो अगेन टू एडजेसेंट एलिमेंट स्वैप कर चेक करते जाना है। तो पहला एलिमेंट कौन सा चेक होगा, 32, 22, एंड यू कैन क्लियरली सी 32 इज ग्रेटर देन 22। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, स्वैप, और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, स्वैप। नेक्स्ट कौन सा चेक होगा, 22 विथ 41, 22 इज लेस देन 41, तो स्वैपिंग की जरूरत है क्या, नहीं, यहाँ पे क्या लिख दिया है, सिर्फ नो स्वैपिंग। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा चेक होगा, 41 विथ 43, अगेन 41 इज लेस देन 43, तो यहाँ पे कोई स्वैपिंग की जरूरत है क्या, देयर इज नो नीड। तो यहाँ पे क्या लिख देना है आप लोगों को, नो स्वैपिंग। नाउ जस्ट सी, यहाँ पे अभी ये वाला ये जो चीज है ना, ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज 73 इज ऑलरेडी सॉर्टेड। ये जो 73 है ना, इट इज ऑलरेडी सॉर्टेड, तो इसको फिर से यहाँ पे ये चेक करने की जरूरत हम लोगों को नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, तो पास टू में, ओके, इन द पास नंबर 2 जो सेकंड हाईएस्ट नंबर था उसने भी अपनी जगह ले ली है। जो सेकंड हाईएस्ट नंबर था उसने भी अपनी जगह ले ली है। नाउ यू विल जस्ट सी द लिस्ट एंड यू विल से दैट मैम आई थिंक दिस लिस्ट इज सॉर्टेड, है ना। अभी आप देख के बोलोगे कि मैडम ये लिस्ट तो सॉर्ट हो चुकी है, लेकिन हम लोगों को वो पूरे के पूरे 4 नंबर पास तक जाना ही पड़ता है। ओके, वेदर द लिस्ट इज सॉर्टेड हुई है नहीं हुई है, वी हैव टू कंप्लीट, राइट। सो ये हो गया पास नंबर 2। अभी मैं आई विल स्टार्ट विद द पास नंबर 3, और पास नंबर 3 में कहाँ से स्टार्ट करूंगी, तो आई विल स्टार्ट अ पास नंबर 3 विद द एंडिंग ऑफ पास 2। पास 2 का जो भी एंडिंग होगा दैट विल बी द स्टार्ट फॉर मी, राइट, फॉर द पास नंबर 3। so it is the end part of this 22, 32, 41, 43, 73. So I'm starting with the past 3 like that, 22, 32, 41, 43, 73. Again सबको पता है ये जो दो नंबर्स है मेरे पास, these are already sorted, है ना, these are already sorted। तो 41 और 43 को भी मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। I will just start with the zeroth index element। 22 with a 32, 22 is already less than, तो यहाँ पे कोई exchange करने की जरूरत है क्या, there is no need। So here I will just write or no swapping। Again I will check 32 with a 41, again 32 is less than 41, so this requires no swapping, so no swapping, and we have done। ओके तो यहाँ पे मेरा थर्ड नंबर पास तक मेरा आंसर आ चुका है। मुझे क्या मिल गया है, तो आई हैव गॉट ये जो 3 नंबर है मुझे मिल गए हैं, जो हाईएस्ट नंबर है वो बॉटम में आ चुके हैं। नाउ आई विल स्टार्ट विद द पास नंबर 4। तो पास 4 में क्या होगा, तो पास 4 में आई विल बी स्टार्टिंग विद द लास्ट ऑफ पास 3। पास 3 का जो लास्ट था, ओके, उसी से मैं पास 4 स्टार्ट करने वाली हूँ। सो व्हाट इज द नंबर, 22, 32। ओके, सो हियर आई विल जस्ट राइट 22, 32, 41, 43, 73। ये जो बोल्ड वाले नंबर्स है, these are already sorted, so there is no need to compare those elements, है ना। इन नंबर्स को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। so we are remaining with only 2 numbers, that is 22 and 32। so again I will compare 22 and 32। 22 is already less than 32, तो कोई स्वैपिंग की जरूरत है क्या, there is no need, so no swapping, and this is how we have done। okay, अभी मेरे पास ये 4th नंबर के इसमें मैं यहाँ तक आ चुकी हूँ। तो पास नंबर 5 में क्या लिखना है, ओके, 5th नंबर के पास में क्या आता है, तो 5th नंबर के पास में आएगा आप लोगों का आंसर। ओके, आई विल गेट माय आंसर, आई विल राइट माय आंसर इन द पास नंबर 5। सो पास नंबर 5 में क्या लिखना है, so sorted array, that's it। you can write your past 5 or you can always skip that part। and now my sorted list is 22, 32, 41, 43 and 73। so क्या करना है, passes क्या है, passes are just the steps। मेरे पास 10 नंबर होंगे तो मेरे 9 पास आने वाला है। if I'm having 15 numbers then 14 passes will be there, and in this condition, in this particular example, I'm having 5 numbers। इसकी वजह से मेरा आंसर कितने स्टेप्स में आने वाला है, तो आई विल गेट माय आंसर इन 4 स्टेप्स। ओके, मेरा आंसर आएगा 4 स्टेप्स के अंदर। और क्या होता है, तो बबल सॉर्ट के अंदर यू हैव टू चेक 2 कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स। जो भी 2 कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स होते हैं, आई विल चेक फॉर दोज एलिमेंट्स ओनली। जस्ट इन दिस कंडीशन 0 with 1, 1 with a 2, 2 with a 3, 3 with a 4, like that, है ना। और अगर पहला नंबर जो है वो दूसरे नंबर से अगर बड़ा आता है
तो आप लोगों को वैल्यूज क्या करनी है, तो यू नीड टू चेंज द वैल्यूज, यू नीड टू स्वैप द वैल्यूज. ओके, सो दिस इज हाउ द बबल सॉर्ट एल्गोरिदम वर्क्स. एक एग्जांपल है जो आप लोगों को सॉल्व करना है. जस्ट अभी सॉर्टिंग चल रहा है, सो आई विल जस्ट रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन टू प्लीज मतलब जब भी कभी लेक्चर होगा या फिर प्रैक्टिकल भी होता है फॉर द सॉर्टिंग, जस्ट कीप योर नोटबुक एंड पेन विथ यू. ओके, बिकॉज ये जो क्वेश्चंस है इस यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं फॉर सॉर्टिंग. फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी लाइक दैट, सॉर्ट द नंबर्स, और द सेकंड थिंग राइट एन एल्गोरिदम. सो एल्गोरिदम में भी क्वेश्चन आते हैं और सॉर्ट करने के लिए भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. सो यू शुड बी एबल टू. चलो दे देती हूँ 2 मिनट या 5 मिनट. प्लीज टेक योर नोटबुक एंड पेन विथ यू एंड ट्राई टू सॉल्व दिस. अगर नहीं आता है देन आई विल एक्सप्लेन. ओके, try to just solve this question. Take your notebook and pen with you. Write the numbers that are 5 4 3 2 1. Again there are 5 numbers. 5 नंबर है तो इसका मतलब कितने पासेस में आंसर आएगा, 4 पास में आंसर आने वाला है. Just try to solve this one. Hello, ma'am. Hmm? Ma'am, can you explain me previous example? This one again. Okay. Yeah, ma'am. Okay, see. This Ma'am, because I am late joined. Okay, okay, it's okay. That's why. See, सबसे पहले बबल सॉर्ट जो भी नंबर्स आप लोगों को दिए गए वो नंबर आप लोगों को लिख लेने हैं. ओके, वर्टिकली आई विल जस्ट राइट दैट नंबर्स. सो और अगर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो यहाँ पे आप लोग इंडेक्स नंबर लिख सकते हो. ओके, सो इट विल बी इजी, है ना. 0 with 1, 1 with 2, 2 with 3, मैंने जो बोल रही थी ना वो इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हो. अभी क्या करना है, तो बबल सॉर्ट में ना 2 कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स चेक होते हैं, 2 एडजेसेंट एलिमेंट्स चेक होते हैं. 2 एडजेसेंट एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, एक के बाद में जो दूसरा नंबर होगा वो नंबर आप लोगों को चेक करना है. और फर्स्ट एलिमेंट अगर सेकंड एलिमेंट से ग्रेटर देन होता है तो आप लोगों को क्या करना है, वो वैल्यू स्वैप करनी है. बिकॉज वी आर गोइंग टू स्वैप द नंबर्स और सॉर्ट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. हम लोगों को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट नहीं करना है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है. तो सबसे छोटा एलिमेंट ऊपर ही आना चाहिए. इसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग स्वैप करेंगे. अगर फर्स्ट पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है वो ग्रेटर देन आता है सेकंड नंबर के पोजीशन के एलिमेंट के साथ, तो हम लोगों को क्या करना है, उसकी पोजीशन हम लोगों को चेंज कर देनी है. ओके, सो हियर आई हैव रिटन द नंबर्स दैट इज 41 32 22 73 एंड 43. कहाँ से स्टार्ट करोगे, 0th नंबर के एलिमेंट के साथ. वो नंबर किसके साथ होगा, चेक होगा, उसके नेक्स्ट एलिमेंट के साथ चेक करना है. तो नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा जा रहा है, 32. So 41 and 32, and you can clearly see 41 is greater than, right? 41 is greater than 32. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्वैप करना पड़ेगा. सो मैं राइट हैंड साइड में अगेन पूरा का पूरा सीक्वेंस लिख लूंगी और जो नंबर स्वैप हो रहा है वहां पे मैं स्वैप लिख लूंगी और उसके जो नेक्स्ट एलिमेंट मुझे चेक करना है, आई विल जस्ट चेक दोज एलिमेंट. तो इसके बाद में विच एलिमेंट आई विल बी चेकिंग, आई विल बी चेकिंग फर्स्ट एलिमेंट विद द सेकंड. सो फर्स्ट कौन सा है 41, सेकंड कौन सा है 22. अगेन क्या करना है, इफ 41 इज ग्रेटर देन 22 तो ये दो नंबर्स क्या करना है, मुझे स्वैप करना है. ओके, सो अगेन मैं राइट हैंड साइड में सेम टू सेम सीक्वेंस लिख लूंगी. जो नंबर मैं स्वैप कर रही हूँ आई विल जस्ट राइट दैट नंबर एज अ स्वैप और उसके बाद में आई विल चेक द नेक्स्ट नंबर. तो नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, सेकंड एंड द थर्ड. तो सेकंड थर्ड में क्या जा रहा है, 41 एंड 73. So 41 and 73 में you can see 41 is already less than, है ना, it is less than 73. So यहाँ पे swap करने की जरूरत है क्या, no need. So again towards the right hand side I will write the same sequence और जहाँ पे मैंने swap नहीं किया है वहाँ पे I will just write a no swapping. Next I will be checking the last two elements, that is 73 and 43, and if 73 is greater than 43 तो उसकी value change करनी है. Clearly 73 is greater than, तो यहाँ पे क्या होगा, swap होगा. 73 कहाँ पे चला जाएगा, towards the bottom. सो पहले स्टेप में क्या मिल रहा है हम लोगों को, तो पहले स्टेप में जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो सबसे बड़ा एलिमेंट उसकी लास्ट वाली पोजीशन ले लेगा. एंड यू कैन क्लियरली सी द 73 इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, लार्जेस्ट ऑफ ऑल, और वो कहाँ पे जा रहा है, सो वो जा रहा है आप लोगों का बॉटम में. सो दैट इज अ पास नंबर 1. अभी पास 2 में क्या होगा, ओके, पास 2 में क्या होगा, तो पास 2 आप लोगों को स्टार्ट करना है फ्रॉम द लास्ट ऑफ पास 1. पास 1 का जो भी लास्ट में मुझे मिल रहा था मैं आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम दैट नंबर ओनली. So the numbers again I will just write a pass 1, I will write a pass 2, और pass 2 की स्टार्टिंग कहाँ से होनी है, pass 1 के लास्ट से. तो pass 2 का लास्ट, pass 1 का लास्ट का क्या था, 32 22 41 43 73. So again हम लोगों को 2 adjacent elements चेक करते जाना है. I will start with the zeroth index element. तो zeroth index में मुझे क्या मिल रहा था, 32, है ना. So I will check 32 with the 22. 32 is greater than 22 तो मैं swap करूंगी and right hand side में I will write the new sequence like 22 32 41 43 73.
और जो नंबर स्वैप हो रहा है वह उसके नीचे मैंने स्वैप लिख दिया है. नेक्स्ट आई विल बी चेकिंग 32 with a 41. 32 is less than 41, so there is no need for the swapping. So here I will just write a no swapping, and then I will compare the two next adjacent element. There are 41 and 43. Again 41 is less than 43, so there is no change. So here again I will write a no swapping, and then I will just write a 43. अभी यहाँ पे मैंने जानबूझ के लिखा है, but whenever you are means solving such a type of question, there is no need for this one. ओके ये वाले लास्ट वाले की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, यहीं पे हम लोगों का आंसर मिल गया है, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे क्या हो गया था, 73 तो ऑलरेडी सॉर्टेड था, है ना, 73 ऑलरेडी सॉर्टेड था. और हम लोग कंपेयर करते करते कहाँ तक आ चुके हैं, 41 और 43 के लिए. और 41 43 में हम लोगों ने क्या कर दिया है, स्वैपिंग मतलब वहां पे नहीं हुई है, सो वी हैव डन विद दैट स्टेप. तो यहाँ पे 43 को कंपेयर करने के लिए मेरे पास कोई नेक्स्ट एलिमेंट है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या, ये पास यहीं पे रुक जाएगा. ओके ये पास यहीं पे रुक जाएगा और मुझे यहीं पे आंसर मिल जाएगा, दैट इज 43 एंड 73. सो 43 इज द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट जिसने अपनी खुद की जगह ले ली है. सो सी अगर आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हो, तो पास नंबर 1 में टोटल 5 स्टेप्स होते हैं, है ना. पास नंबर 1 में कितने स्टेप्स है, 1 2 3 4 एंड 5. पास 2 में कितने हैं, इट विल बी ओनली 4. ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बोल रही हूँ, देयर आर ओनली 4. अगर पास 3 की बात करूँ, तो 3. पास 4 की बात करूंगी तो देयर विल बी 2. सो दिस इज हाउ आप लोगों के जो पासेस है ना वो स्टेप्स के अंदर वो मतलब डिक्रीज होते जाते हैं. सो पास 2 के अंदर क्या मिल गया था मुझे, दिस लाइन. और यहाँ पे क्या हो रहा था, 43 और 73 ऑलरेडी सॉर्ट हो चुके थे. नाउ क्लियरली यू कैन सी द नंबर्स आर ऑलरेडी सॉर्टेड, है ना, नंबर्स ऑलरेडी सॉर्टेड है, लेकिन आप लोगों को लिखना पड़ेगा. जितने पास बनते हैं उतने पासेस आप लोगों को लिखने ही पड़ेंगे. अगर 5 एलिमेंट है तो 4 पासेस कंपलसरी. So I will start with the last of this pass 2. तो pass 2 का क्या मिल रहा था मुझे, 22, 32, 41, 43 and 73. Again I will check zeroth number index, zeroth index element with the first index element, that is 22 or 32. 22 is less than, so there is no change. So here I will just write a no swapping. And 32, 41. The 32, 41 में भी there is no need for the swapping. So we have got our third largest number. Okay, और वो आ रहा है आप लोगों का 41. ये हो गया पास नंबर 3. पास 4 कहाँ से स्टार्ट करोगे, तो पास 4 स्टार्ट करना है पास 3 के एंडिंग से. देखो मैंने बहुत बार ये सब्जेक्ट लिया है और मैंने देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, each and every time inside the passes also they start with the original sequence. वो क्या करते हैं ना, ये ओरिजिनल सीक्वेंस से स्टार्ट करते हैं. ये कभी भी भूल मत करना. अगर पास 2 मुझे स्टार्ट करना है तो पास 2 की स्टार्टिंग क्या होगी, तो पास 2 की स्टार्टिंग होगी पास 1 की एंडिंग, है ना. तभी आप लोगों का नंबर सॉर्ट होने वाला है. अगर मैं ईच एंड एवरी टाइम अगर मैं पहले से स्टार्ट करूंगी ना, तो वो कंफ्यूज मतलब कुछ अलग ही हो जाएगा और आप लोगों को आंसर मिलेगा ही नहीं. सो रिमेम्बर, यहाँ पे मैंने कहाँ तक एंड हुआ था मेरा, ये वाला मुझे एंड मिला था. तो पास 3 मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, पास 2 के एंडिंग से. अभी मुझे पास 3 में एंडिंग क्या मिल रहा है, 22, 32, 41, 43, 73. तो मैं पास 4 में कहाँ से स्टार्ट करूंगी, यही से स्टार्ट करना है. तो पास 4 में क्या मिल रहा है, 22, 32, 41, 43, 73. नाउ 41 ये पूरा का पूरा सॉर्ट है ऑलरेडी, तो 2 ही एलिमेंट बच रहे हैं मेरे पास, कौन सा है, 22, 32. सो आई विल जस्ट कंपेयर दिस एंड यू कैन क्लियरली सी 22 इज ऑलरेडी लेस दैट. तो यहाँ पे कोई भी स्वैप करने की जरूरत है क्या, देयर इज नो नीड. सो हियर आई विल जस्ट राइट अ नो स्वैपिंग और मुझे 32 तक का नंबर्स मिल चुका है. और यहाँ पे 22 को कंपेयर करने के लिए कोई नेक्स्ट एलिमेंट मेरे पास है नहीं. तो इसका द मीनिंग ऑफ दिस इज दैट दिस इज द एंड ऑफ योर सॉर्टिंग, दिस इज द एंड ऑफ योर पास. और सॉर्टेड एरे मुझे क्या मिल गया, तो सॉर्टेड एरे मुझे मिल रहा है 22, 32, 41 और 73. अगर यहाँ पे किसी को और प्रॉब्लम होगा तो जस्ट लेट मी गिव 5 to 10 मिनट्स, 2 मिनट दे दो, मैं ऑनलाइन कोई भी एक फेस से सर्च करके आप लोगों को एक आध एग्जांपल बता रही हूँ. और अगर पता चल गया होगा तो प्लीज लेट मी नो. इफ यू वांट मी टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट एग्जांपल, या आप लोग ट्राई करने वाले हो, आई डोंट थिंक सो, है ना. हाँ, इतना ज्यादा एग्जाम्पल मतलब डिफिकल्ट नहीं है. सो जस्ट ट्राई टू सॉल्व द प्रीवियस वन, मैंने आप लोगों को दिया था. लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन. एक काम करती हूँ, फटाफट एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं. हाँ एकदम सी, जस्ट अ मिनट. गूगल पे से निकाला है मैंने, अगर आप लोगों को भी देखना होगा, आप लोगों को भी ऐसे कुछ सर्च करना होगा तो यू कैन ऑलवेज सी. दिस इज एग्जाम्पल, राइट हैंड साइड में देखना है आप लोगों को. सो 8, 5, 2, 6 एंड 12. ओके, यहाँ पे ना इन लोगों ने हॉरिजॉन्टली लिखा है,
लेकिन ईच एंड एवरी टाइम ट्राई करना कि आप लोग वर्टिकली लिखे, उसमें ना पास अच्छे से पता चल जाते हैं। ओके, सो कहाँ से स्टार्ट करना है? सबसे पहले यू विल बी स्टार्टिंग विद द 0th नंबर इंडेक्स। तो 0th नंबर इंडेक्स में क्या हो रहा है? तो 0th नंबर इंडेक्स में आप लोगों को चेक करना पड़ेगा 0th नंबर विद द फर्स्ट नंबर, है ना। और फर्स्ट नंबर क्या है? इट इज ग्रेटर। तो यहाँ पे क्या होगा? स्वैप होगा। तो स्वैप होके क्या मिल रहा है? 5 and 8। दिस इज अ पास वन, दिस इज अ पास वन। सो 5 and 8। उसके बाद में क्या हो रहा है? यू हैव टू चेक विद द नेक्स्ट एलिमेंट, दैट इज 8 and 2। 8 and 2 में भी क्या हो रहा है? 8 इज ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे क्या होगा? अगेन इंटरचेंज होगा। सो व्हाट यू विल गेट? 5 to 8। नेक्स्ट किसके साथ होगा? 8 and 6। अगेन 8 इज ग्रेटर देन, तो 6 यहाँ पे आ जाएगा, 8 यहाँ पे आ जाएगा। और लास्ट में क्या मिल रहा है? 8 and 12। तो 8 and 12 में अगेन यू हैव टू चेक विद 8 and 12, और 8 and 12 में 8 इज लेस देन, तो यहाँ पे कोई इंटरचेंज की जरूरत नहीं है। सो फर्स्ट इटरेशन और फर्स्ट पास के बाद में क्या मिल रहा है? तो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट था ना, वो लार्जेस्ट एलिमेंट लास्ट में आ चुका है, दैट इज एट द, यू कैन सी हियर, दैट इज 12। उसके बाद में क्या होगा? पास नंबर 2 होगा। पास 2 का स्टार्ट कहाँ से करना है आप लोगों को? फ्रॉम 5 to 6 8 and 12। ओके, यहाँ से स्टार्ट करोगे। अगेन यू विल चेक द फर्स्ट नंबर 5 and 2। तो 5 and 2 क्या आ रहा है? तो 5 इज ग्रेटर देन, तो अगेन यू विल इंटरचेंज। सो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 6, है ना। अगेन यू आई विल चेक, यहाँ पे था मेरा 5 और यहाँ पे था 6, 5 और 6, देयर इज नो नीड फॉर द चेंज, स्वैपिंग की कोई जरूरत नहीं है। तो इसकी, सो यू कैन जस्ट कंटिन्यू। तो कितने एलिमेंट्स हम लोगों के पास? 5 एलिमेंट्स है। तो कितने पासेस में आंसर आएगा? तो 4 पासेस में आंसर आएगा। आंसर जो मिलने वाला है दैट विल कम इन द पास नंबर 4, है ना। और जितने पासेस है, पासेस के अंदर भी एक एक जो कंपैरिजन है ना, वो कम होता जाएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर इफ आई एम कंपेयरिंग, अगर मैं पास 1 के अंदर कर रही हूँ, जस्ट सी हियर अगेन फॉर लास्ट टाइम, पास 1 में मैं ले रही हूँ ना, तो 5 के 5 मुझे स्वैपिंग के मुझे बताने पड़ेंगे। व्हाई? बिकॉज दिस इज पास 1। पास 2 में एक लेस देन हो जाएगा, दैट इज 4, 1 2 3 4, देयर इज नो नीड फॉर दिस वन, मैंने ये ऐसे ही लिखा है। सो नेक्स्ट पास 3 में क्या जा रहा है? तो पास 3 में 3 ही आएंगे, पास 4 में 2 ही आएंगे, और पास 4 या लास्ट में क्या आ जाएगा? तो आंसर आ जाएगा। सो व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग, एक एक से हमारा जो अंदर वाला पास है ना, अंदर वाले जो कंपैरिजन है, वो भी क्या हो रहा है? तो वो भी डिक्रीज होते जा रहा है। सो रिमेंबर एंड ट्राई टू सॉल्व दिस एग्जांपल। Sort the numbers using bubble sort. The number given are 5 4 3 2 and 1. I'm giving you sufficient time. Okay, और मैं किसी को भी पूछूंगी, you need to share your screen, otherwise I won't give you the attendance. Try to solve this example. प्रॉपर पास में मुझे आंसर चाहिए। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। और अगर किसी को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन आस्क मी। डन? ओके, गुड। आई वांट प्रॉपर आंसर, हाँ, गड़बड़ी मत करना। ओके, गुड। आप लोगों ने पहले स्टार्ट कर दिया था क्या? ओके ओके, ओके, गुड। सबको करना है, सबको। सबसे इजी पार्ट होगा ना डेटा स्ट्रक्चर का, तो ये सॉर्टिंग है, और थोड़ा आई थिंक, ओके, गुड। मैम, हाँ हाँ, हर पास में एक एक कॉलम डिक्रीज होना कंपलसरी है? मतलब हो जाता है, कोई जरूरत ही नहीं रहती ना ऐसे लास्ट में कंपेयर करने की। अगर लिखा है तो इसमें इट्स पास ओके। नहीं है। हाँ, मतलब कंपलसरी नहीं है ना ऐसा? मतलब तुमने क्या किया है? जस्ट शेयर योर स्क्रीन। मैं मेरा स्टॉप कर दे रही हूँ। शेयर द स्क्रीन। मैम डिसेबल्ड है। ओके, सॉरी। जस्ट अ मिनट। ओके, मैम सी, हाँ, पास कोई टू है? में लास्ट में हाँ, 4 और 5 है, तो वो हमें दिखाना नहीं है ना? नहीं वो नहीं दिखाना है। ओके, ओके। मतलब वो लिखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे क्या कर सकते हो आप लोग, जो 5 है ना, यहाँ पे बॉक्स बना सकते हो। समझ में आ रहा है?
मैं यहाँ पे बॉक्स बना सकती हूँ कि 5 मेरा हो गया, उसके बाद में अभी जस्ट वो बॉक्स की साइज इंक्रीज कर सकती हूँ, 5 1 5 2 5 3 इस तरह से। ये चेक करने की जरूरत नहीं है। ओके ओके मैम। ओके, चलो हो गया है सबका? नहीं, आई विल आस्क एनीबॉडी, हाँ किसी को भी बोलूंगी टू शेयर योर स्क्रीन। इफ यू वांट मी टू गिव यू सम टाइम, 5 minutes 4 minutes, लेट मी नो। टाइम देना है। ओके, कर लिया है सब लोगों ने? जिन्होंने नहीं किया है प्लीज रेज योर हैंड्स। जिन्होंने नहीं किया है प्लीज। वैसा नहीं है ना कि जो बस लेक्चर के लिए आ रहा है, अटेंडेंस के लिए बस। जेमिश, रीनेम योरसेल्फ। जेमिश, विज रोल नंबर 6। जिनका भी ऑडियो डिसेबल होगा ना, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू अटेंडेंस। हाँ ओके, चलो। So I hope so you have done with the that example, right? सबको आ रहा है और सबको पता चल रहा है कैसे और क्या हो रहा है। रोल नंबर 65, just share your screen. Roll number 65, unmute yourself. Yes, सुन रहे हो आप? वही 65 रोल नंबर। फॉर दिस पर्टिकुलर सॉर्टिंग आज बोल रही हूँ, चलो मैंने पहले से नहीं बोला था। मैं कुछ अभी आज के अटेंडेंस में कुछ नहीं करूंगी, बट इसके बाद में सॉर्टिंग के लिए या लिंक लिस्ट के टाइम पे मुझे 100% सबका मतलब परफॉर्मेंस चाहिए। बिकॉज दिस इज नॉट द थिंग, दिस इज नॉट द सब्जेक्ट कि आप लोग सिर्फ पढ़ पढ़ के पास हो जाओगे। अगर क्लास में या मैं जब करवा रही हूँ तब आप लोगों को ये समझ में आ रहा है, आप अच्छे से कर रहे हो ना, तो यू विल स्कोर। यहाँ पे स्कोर भी कर सकते हो। और अगर खुद से पढ़ने की बारी आती है या फिर यू रिलाई ऑन यूट्यूब और समथिंग, तो ये सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट लगेगा। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन, okay, he's having network issues, okay, but just a request, from the next class onwards सबके पास एक नोटबुक और ये एक पेन चाहिए, मतलब चाहिए, है ना? बिकॉज ये सॉर्टिंग वाले प्रॉब्लम्स ऐसे नहीं है कि मैं सिर्फ बातें करती रहूंगी और आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सो इट इज नॉट द केस, यू हैव टू सॉल्व। आप लोगों को खुद को ही सॉल्व करने पड़ेंगे। लिंक लिस्ट के अंदर भी आप लोग खुद ही ट्राई करोगे ना, तो इट विल बी इजी। और अगर मैं बोल बोल के आपके दिमाग में डाल रही हूँ ना, देन
उस चीज का कोई मतलब ही नहीं रहता है. ओके, सो आई एम नॉट राइट नाउ, मैं किसी का भी कुछ भी अटेंडेंस का इस लेक्चर में नहीं कर रही हूँ, बट फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स मैं किसी को भी बोलूँ और वो शेयर ना करे ना, तो आई वोंट गिव यू. ओके, इट्स ओके गौरव, इट्स ओके, राइट? सो फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर नहीं चलेगा. चलो, सो आप लोगों को अभी इसका कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना? व्हाट इज अ बबल सॉर्ट एंड हाउ एक्चुअली इट वर्क्स. सो एक चीज तो पता चल रही है हम लोगों को. सबसे पहली बात क्या है, तो पासेस में आंसर आ रहे हैं, है ना? पास के अंदर आंसर आ रहे हैं, और जो पास के अंदर आंसर्स आ रहे हैं वो पासेस के अंदर भी नंबर एक एक से कम होते जा रहे हैं, है ना? पहले पास के अंदर कितने नंबर्स थे, तो पांच पांच हम लोगों ने स्वैपिंग की थी. सेकंड के अंदर 4, उसके बाद में 3, उसके बाद में 2, उसके बाद में 1. So what we are doing, we will run 2 consecutive for loops. तो यहाँ पे मैं 2 for loop चलाऊंगी. फर्स्ट for loop इसके लिए, पास के लिए, स्टेप्स के लिए, और सेकंड for loop I will run for just to check the 2 consecutive elements. ओके, एक पास क्या है, पास एक स्टेप है, और वो स्टेप के अंदर उस स्टेप के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, तो वी आर रनिंग डिफरेंट लूप फॉर द चेकिंग. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो चेकिंग हो रहा है. किस चीज की चेकिंग यहाँ पे हो रही है, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की यहाँ पे चेकिंग हो रही है. तो 2 फॉर लूप लगेंगे. एक फॉर लूप लगेगा फॉर द आउटर फॉर लूप, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर द स्टेप, है ना, फॉर द स्टेप, ये स्टेप के लिए. और दूसरा वाला फॉर लूप किस चीज के लिए लगेगा, तो दूसरा वाला फॉर लूप लगेगा टू कंपेयर द 2 कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स. तो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर को चेक करने के लिए आई विल नीड अ सेकंड फॉर लूप. ओके, और पहला फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, तो पास के अंदर यू कैन क्लियरली सी ये चलता है फ्रॉम द फर्स्ट नंबर टू द लास्ट नंबर. सो द फर्स्ट फॉर लूप, द आउटर फॉर लूप, इट विल रन फ्रॉम 0 टू द n. ये रन होगा फ्रॉम 0 टू द n, और आई कैन से 0 टू n-1. और उसके अंदर वाला जो लूप है ना, जो हम लोग ये बोल रहे हैं, व्हाट आई एम सेइंग दिस फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट, की जहाँ पे हम लोग 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे यू कैन क्लियरली सी एक एक से वो कम होता जा रहा है. 5 एलिमेंट होगा तो 4 हो गए तो 3 हो गए तो 2 होगा तो 1, है ना? तो वहां पे क्या होगा, वो n-i चलेगा. एक जो नंबर था ऊपर वाला जो लूप था, उसका भी वो 1 माइनस चलने वाला है. तो इसका एल्गोरिदम कैसे लिखा जाता है, मैं फिर से एक बार समझाऊंगी. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. इनपुट द n नंबर्स टू एन एरे A. तो ये क्या बोल रहा है, तो एरे के अंदर आप लोगों को क्या लेना है, तो एरे के अंदर यू नीड टू टेक द नंबर्स, है ना? सेकंड में क्या बोल रहा है, इनिशियलाइज, दिस इज द आउटर फॉर लूप. Initialize I is equals to 0 and repeat through step number 4 if I is less than n. मेरे पास 5 नंबर होंगे तो ये 4 बार चलेगा, 4 नंबर्स होंगे तो 3 बार चलेगा, 10 नंबर होंगे तो 9 टाइम्स चलेगा. दिस इज अ पास, है ना? दिस इज अ पास, दिस इज अ स्टेप. वो जो आउटर वाला है इसके लिए चलेगा. सो दिस इज I लेस देन n. और अंदर वाला फॉर लूप किसके लिए चलाना है, तो अंदर वाला फॉर लूप, द इनर फॉर लूप वी विल रन टू चेक द 2 कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स. ओके, और ये लूप कहाँ से कहाँ तक चलना है, तो जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा ना फर्स्ट हाफ में, दैट विल टेक इट्स पोजीशन इन द फर्स्ट पास इटसेल्फ. वो पहले ही पास में वो हो चुका होगा, तो वहां पे हम लोगों को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है. तो इसका मतलब क्या, आई की जो भी वैल्यू होगी, मतलब आई की जो भी वैल्यू होगी उससे वो एक माइनस चलेगा. तो सपोज मेरा आई पहले 5 था, तो आउटर इनर फॉर लूप कितनी बार चलना है, 4 टाइम. अगर आई की वैल्यू 4 जा रही है तो कितनी बार चलना है, 3 टाइम. वो हम लोग ये कम होते जा रहा है ना. ओके, सो ये एक एक से कम हो रहा है, एक एक से कम हो रहा है, मतलब कहाँ से कम हो रहा है, तो जो भी आई की वैल्यू होगी ना उतना वो माइनस जा रहा है. ओके, सो यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, यू हैव टू इनिशियलाइज द सेकंड j, the second counter variable, that is initialize j is equals to 0 and repeat through step number 4 if j is less than n minus I minus 1. See, these are capital में लिखे ना, इसीलिए ये आप लोगों को ऐसे दिख रहे हैं. These are the I. Okay, this is I and this is also I. So if j is less than n minus I minus 1, तो I की जो भी वैल्यू होगी उससे वो 1 माइनस चलना है. ओके, वहां से वो माइनस हो जाना है. और नेक्स्ट क्या करना है, सो दिस इज अ नॉर्मल सॉर्टिंग. ये तो हम लोगों ने स्वैपिंग का लॉजिक देखा था, है ना, बहुत बार देखा है. यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैंने क्या बोला था, इफ फर्स्ट इंडेक्स एलिमेंट इज ग्रेटर देन सेकंड इंडेक्स एलिमेंट, तो क्या करना है, तो एक्सचेंज करना है. तो फर्स्ट नंबर का इंडेक्स आई विल डिनोट विद द हेल्प ऑफ अ j, और सेकंड वाला किससे डिनोट करूंगी, j+1. सो इफ a of j is greater than a of j+1, तो ये दोनों की वैल्यू स्वैप करनी है विद द हेल्प ऑफ अ थर्ड वेरिएबल.
और इसका लॉजिक सबको पता है, दैट इज temp is equals to a of j. a of j is equals to a of j plus 1 and a of j plus 1 is equals to temp. करते हैं ना हम लोग, t is equals to a, है ना, a is equals to b and b is equals to t. सिमिलर है, temp is equals to a of j. a of j is equals to what? a of j plus 1 and a of j plus 1 is equals to what? temp. और लास्ट में क्या कर देना है, तो लास्ट में वैल्यू जो भी आनी है आप लोगों की, वो a के अंदर वैल्यूज विल बी सॉर्टेड, सो यू जस्ट नीड टू प्रिंट द सॉर्टेड लीस्ट. अभी यहाँ पे कंफ्यूजन एक ही चीज का होगा आप लोगों को कि ये n-1 क्यों चल रहा है. तो ये n-1 इसके लिए चल रहा है कि जो स्टेप है ना, वो स्टेप के अंदर एक माइनस से ही आप लोगों का वो लूप चलने वाला है. अगर मेरे पास 5 एलिमेंट्स होंगे तो मैं वो 4 बार ही चेक करने वाली हूँ. 4 हो गए तो 3 बार, 3 होंगे तो 2 बार. मतलब क्या हो रहा है, जो i की वैल्यू जा रही है वो भी मुझे यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, तो माइनस. So that is the reason why this inner loop will run from j less than n minus I minus 1. और ये वाला logic, I think this is the easiest one. This is a swapping logic. In each and every sorting algorithm, you will see this particular swapping part. ये swapping part वहाँ पे आना ही है. Okay? क्या करता है, तो बबल सॉर्ट चेक करता है 2 consecutive elements, 2 adjacent elements. और अगर मैं 2 adjacent element चेक कर रही हूँ तो सिंपल, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो एक चीज ध्यान में रखना, अगर मैं 2 consecutive elements चेक कर रही हूँ तो इसका मतलब what I will need a 2 for loop, है ना. I will need a 2 for loop. पहला जो for loop होगा वो चलेगा for the pass, और अंदर वाला जो for loop होगा वो किसके लिए चलेगा, तो चेकिंग के लिए चलेगा. और यहाँ पे क्या लिखा है, if first element is greater than second element, तो आप लोगों को ये दोनों की पोजीशन क्या करनी है, you have to interchange this value of this a of j and a of j plus 1 with the help of a third variable temp. temp क्या है, temp it is a third variable with the help of which you are going to swap this value. Okay, you are going to swap the value of a of j and a of j plus 1. So what is the algorithm? First step, अगर ये ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है तो यू कैन राइट एल्गोरिदम एट योर ओन लैंग्वेज. आप लोग आपके लैंग्वेज में लिख सकते हैं. व्हाई? बिकॉज एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम दिस इज जस्ट अ स्टेप. अगर आप लोगों को बुकिश लैंग्वेज यूज नहीं करनी है, जो मैं से लिख रही हूँ ऐसे आप लोगों को नहीं लिखना है, तो भी आप लोग आपके हिसाब से यू कैन राइट योर ओन एल्गोरिदम एंड आई कांट रिड्यूस योर मार्क्स. मैं आप लोगों के मार्क्स वहां पे काट नहीं सकती हूँ. Right, I just need the steps. If steps are written correctly, then I have to give you marks. Okay, so अगर यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना आप लोगों को, input n numbers to an array A, simply write लिख देना कि input the numbers. Okay, or take the numbers of an array from the user. That's it. Step number 2 क्या बोल रहा है, initialize I is equal to 0 and repeat through step 4 if I is less than n. अगर ऐसे नहीं लिखना है, you can directly write okay, take the for loop, right, take the for loop and for the condition and run through the step number 4 for the condition I less than n. That's it. Third step में क्या हो रहा है, तो we are starting with the third the inner for loop, that is the initialize j is equals to 0. कब तक चलाना है, तो इसको चलाना है आप लोगों को j less than n minus I minus 1, j less than n minus I minus 1. ओके, और उसके अंदर क्या करना है, तो उसके अंदर सिंपली यू जस्ट नीड टू स्वैप दोस वैल्यूज. तो स्वैप करने के लिए क्या लगेगा आप लोगों को, तो स्वैप करने के लिए लगेगा आई विल नीड अ थर्ड वेरिएबल, दैट इज अ temp. So if a of j is greater than a of j plus 1, so what I will write, I will just write temp is equals to a of j is equals to a of j plus 1 and a of j plus 1 is equals to temp. और लास्ट में क्या करना है, तो जो भी लिस्ट होगी वो लिस्ट को आप लोगों को डिस्प्ले करना है. ओके, अगर नहीं समझ में आ रहा है एल्गोरिथम, इट्स ओके, आई विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर फ्रॉम दिस पार्ट ओनली. बट अभी के लिए मुझे बोल दो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द बबल सॉर्ट. Don't worry, I will start with the this algorithm only from the next for the next lecture. Tell me the time complexity